dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5th science, chapter number 13, that is about solar system. Students, solar system is the whole or the combined form of the different types of planets and the other heavenly bodies which all together make the solar system. Alright, the collection of the various planets. ठीक है, उसके अलावा we have the various other celestial bodies also, such as we have stars, asteroids, comets, and they all together make up a family known as solar system. ठीक है, so in this session we will learn about the sun, the planets, asteroids, comets, meteoroids, satellites, moon. So basically these all are the components of the solar system only. ठीक है? Now the names of the planets are given in the box. Arrange them according to the distance from the sun. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या planets के names given है, हमें इन्हें क्या arrange करना है, किसके according to the distance from the sun, यानी कि sun से इनका किस तरीके से distance है, यानी कि सबसे पहला planet कौन सा है, sun के nearest planet कौन सा है, फिर second, third, fourth, fifth, such as you have to write the names of all the 8 planets of our solar system. So the very first planet we have, which is the nearest planet to the sun, is Mercury. Right? Second, we have Venus. Mercury, Venus. Third, we have our home planet, that is Earth. Fourth, we have Mars, Mars, Mars. Fifth is Jupiter. Sixth is Saturn. Seventh is Uranus. And eighth is Neptune. So like this, I have written all the 8 planets. Arranged all the 8 planets in what? Increasing order of the distance from the sun. So the solar system consists of the solar system में क्या क्या है students? Sun, planets जो कि उसके surrounding में around revolve करते हैं. Center में sun है and sun के around क्या सारे planets revolve करते हैं in their particular orbits. It also includes other celestial bodies. जैसे कि मैंने बताया था सोलर सिस्टम में इसके अलावा भी काफ़ी सारी celestial bodies include करी जाती हैं such as planet, comet, asteroids, meteors. And the gravitational force, जो हमारा gravitational force होता है sun और इन सभी objects के बीच में, वो क्या करता है इन सभी objects को अपने अपने orbit में रखता है. Planets क्या है स्टूडेंट्स? Planets large celestial bodies है जो कि एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती है. वो स्टार क्या है? दैट इज सन. दे आर कंपोज्ड ऑफ प्लैनेट्स किसके बने हैं? गैसेस, मेटल और रॉक्स के. एंड प्लैनेट्स कहाँ मूव करते हैं? अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं एंड दैट फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट. हर एक प्लैनेट का अपना पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. वी कैन डिफ्रेंशिएट प्लैनेट्स. आप प्लैनेट्स को और स्टार्स को यूजर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. किसके थ्रू? टेलीस्कोप के थ्रू. ठीक है, अदरवाइज वो सारे ही क्या दिखते हैं? सेम दिखते हैं. प्लैनेट्स क्लोजर टू द सन, जो प्लैनेट सन के क्लोज होते हैं वो कम टाइम लेते हैं एंड वो प्लैनेट्स जो सन से दूर है वो ज्यादा टाइम लेते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन. ऑलराइट, नाउ we have topic the sun. The sun क्या है? Round shaped golden star. ठीक है, which scientists have named so after the ancient Roman name sun god. ठीक है, एक राउंड शेप का गोल्डन स्टार जिसको साइंटिस्ट ने नेम दिया था एक एंशियंट रोमन नेम के बिहाफ पर, दैट वाज सन गॉड. ठीक है, तो सन कब बॉल हुआ? सन बॉल हुआ था इन अ वास्ट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट. कब? अराउंड 500 बिलियन years ago. Sun produces its own heat. Sun की अपनी खुद की heat, light energy है and the sun is by far the largest object in the solar system. अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज द सन ओनली. 98%, ठीक है, सोलर सिस्टम का 98% जितना भी मैटर है वो विद इन द सन की प्रेजेंट है. एंड द सन इज सो लार्ज दैट द अर्थ कुड इजीली फिट इनसाइड द सन.
अ मिलियन टाइम्स। ठीक है, सन इतना लार्ज है अपने आप में, इतना बड़ा साइज है सन का कि हमारे अर्थ के जैसे 1 मिलियन अर्थ जो है बहुत इजीली उस सन के अंदर फिट हो जाएंगे। सन कितना नियरली 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है अवे फ्रॉम द अर्थ। ऑलराइट, ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को जो हीट एंड लाइट मिल रही है वो किससे मिल रही है? फ्रॉम द सन। सो इसीलिए सन क्या है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दी अर्थ। ठीक है, लाइट फ्रॉम द सन, सन की जो लाइट है वो अर्थ तक ओनली 8 मिनट्स, 8 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। Now next we have the planets and solar system में कितने 8 planets हैं as we have discussed and their names are what? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये क्या है? एक increasing order में है of the distance from the earth, sorry from the sun. सन से इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिस्टेंस का, उस ऑर्डर में हमने इसे अरेंज किया। यू कैन सी ये हमारा सन है। सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द लास्ट और द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन नोन एज नेपट्यून। अर्लियर सी सुने व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्लियर पहले जो थे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। ठीक है, जिसमें प्लूटो नाम के प्लैनेट को भी इंक्लूड किया जाता था। बट नाउ आज के टाइम के प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगराइज किया गया है इसके स्मॉल साइज होने की वजह से। सो लेट अस रीड अबाउट दीज प्लैनेट। अब हम इन सभी प्लैनेट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मरकरी, जो कि सबसे पहला एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, राइट। एंड इसको स्टूडेंट्स हम ऑफनली क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इस प्लैनेट को। व्हाई? बिकॉज इट शाइन्स ब्राइटली इन द अर्ली मॉर्निंग जस्ट बिफोर द सन राइजेस। ठीक है, सनराइज होने से पहले बहुत ब्राइटली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अर्ली मॉर्निंग पे ये प्लैनेट शाइन करता है, देयरफॉर इट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं बिकॉज इट इज ऑफन विजिबल फॉर अ ब्रीफ पीरियड जस्ट आफ्टर द सनसेट। सनसेट के बाद बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए भी ये थोड़ी देर हमें क्या अपीयर होता है स्काई में जस्ट आफ्टर द सनसेट, इसलिए इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इट्स इंडियन नेम, ठीक है, मरकरी का जो इंडियन नेम है दैट इज बुध। एंड बुध में क्या? इट हैज नो मून्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव वीनस। वीनस आपका सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से एंड ये सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम इन साइज, मास एंड ग्रेविटी एज अर्थ। जितना साइज, मास या ग्रेविटी अर्थ की है ऑलमोस्ट सेम उतनी ही वीनस की भी है। वीनस में वॉल्केनोज भी हैं, माउंटेन्स हैं, सैंड्स हैं, जस्ट लाइक अर्थ। ऑलराइट, एंड इसका इंडियन नेम होता है शुक्र। इट ऑल्सो हैज नो। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी हैव अर्थ। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है एंड ओनली नोन प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम व्हिच हैज लाइफ ऑन इट। अकेला ऐसा प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम का जिससे लाइफ पॉसिबल है, दैट इज द अर्थ, आवर होम प्लैनेट। ऑलराइट, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, फ्रॉम द सन, वो कितना है कि इट रिसीव जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट। इतना है कि हमारा जो अर्थ है वो जस्ट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट या लाइट को रिसीव करता है फ्रॉम द सन। एंड उसके अलावा अर्थ के पास क्या है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर भी है जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। एंड ये ऑक्सीजन गैस क्या है? नेसेसरी है फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो मेंटेन्स, इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर, वो एक मॉडरेट टेम्परेचर भी मेंटेन करता है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द नाइट टाइम। द अर्थ ऑल्सो हैज वाटर। ठीक है, इसके अलावा अर्थ पे वाटर भी प्रेजेंट है एंड ये सभी फैक्टर्स जो है, ऑल दीज फैक्टर्स मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ऑलराइट, हमारा जो इंडियन नेम है अर्थ का दैट इज पृथ्वी एंड केवल एक नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के पास है जिसका नेम क्या है? मून। ऑलराइट, नाउ द फोर्थ प्लैनेट इज मार्स एंड मार्स क्या है? सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ का। ऑफनली इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इसके सरफेस पे एक रेडिश अपीयरेंस है। यू कैन सी लाइक दिस। ऑलराइट, मार्स के कितने मून है स्टूडेंट्स? 2 मून्स। इनका नेम क्या है? फोबोस एंड डीमोस। एंड जो एवरेज टेम्परेचर है मार्स पे वो वेरी करता है -63 डिग्री सेल्सियस टू
20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, देर आर सो फार नो ट्रेसेस, अभी तक कोई भी ऐसे ट्रेसेस नहीं मिले हैं फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट नोन एज मार्स, एंड इसका जो इंडियन नेम है दैट इज मंगल। नेक्स्ट वी हैव जुपिटर। जुपिटर हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का, एंड फिफ्थ नियरेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इट इज वेरी स्ट्रॉमी प्लैनेट। व्हाट दिस सेइंग कि जुपिटर अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉमी प्लैनेट होता है। ठीक है, व्हाट इट हैज रेड स्पॉट्स ओवर इट सरफेस, एंड ये जो रेड स्पॉट होते हैं दैट इज कॉल्ड द आई ऑफ जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के कितना, जुपिटर पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस पे कुछ फेंट रिंग्स इसके अराउंड दिखेंगी इस तरीके से, फेंटेड होती है। एंड हाउ मेनी? 3 फेंट रिंग्स इट हैज अराउंड इट्स सरफेस। ठीक है, एंड व्हेन दे आर विजिबल, ये फेंट रिंग्स तभी विजिबल होती है जब जुपिटर सन के फ्रंट में से पास होता है। एंड इसका इंडियन नेम क्या है? बृहस्पति। कितने? 62 मून्स इसके पास होते हैं। सी इफ यू वेट 32 किलोग्राम ऑन अर्थ, व्हाट दिस सेइंग कि अगर आपका जो वेट है अर्थ पे 32 किलोग्राम है तो आप कितना 54 किलोग्राम वेट करोगे ऑन द जुपिटर। इट इज लार्ज एंड हैज मोर ग्रेविटी देन अर्थ। ठीक है, जुपिटर जो है काफी बड़ा है, एंड इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव सैटर्न, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, एंड सिक्स्थ नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। सैटर्न को जाना जाता है, इट इज वेल नोन फॉर इट्स रिंग। यू कैन सी इस तरीके से जो रिंग्स है इसके अराउंड, इसी के लिए द सैटर्न इज वेल नोन एंड इट इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ रिंग्स। ठीक है, सैटर्न को लॉर्ड ऑफ रिंग्स भी कहा जाता है बिकॉज इसके अराउंड 7 मेजर रिंग्स होती है। रिंग्स किसके बनी है? आइस, डस्ट एंड रॉक्स पार्टिकल से बनी है रिंग्स। इसका जो इंडियन नेम है दैट इज शनि। कितने? 146 मून है सैटर्न के पास, कंफर्म as of 2021 by NASA. Then we have Uranus. Uranus हमारा 7th planet है from the sun, an extremely cold planet है। इसे हम आइस जॉइंट भी कहते हैं। किसका बना है? रॉक्स एंड आइस का बना है। एक ग्रीनिश ब्लू डिस्क की तरह दिखता है व्हेन यू व्यू इट थ्रू अ टेलीस्कोप। अगर आप इसे टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तो इसकी अपीयरेंस एक ग्रीनिश कलर की या ब्लूइश कलर की डिस्क की तरह होती है। और इसका जो इंडियन नेम है दैट इज अरुण। राइट, कितने? 27 मून्स है यूरेनस के पास। एंड द लास्ट प्लैनेट वी हैव इज व्हाट? नेपट्यून, जो कि 8th प्लेस पर है, एंड इट अपीयर्स एज अ ब्लू पेल ब्लूइश डिस्क थ्रू टेलीस्कोप अगेन। ठीक है, सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन, एंड वेरी विंडी प्लैनेट, बहुत ज्यादा हवाएं या विंड्स यहाँ पे ब्लो करती हैं। 6 फेंट रिंग्स भी इसके अराउंड अपीयर होती हैं। इसका इंडियन नेम है वरुण, एंड कितने? 14 मून्स आर देयर ऑन द नेपट्यून प्लैनेट। राइट, so these were the 8 planets of our solar system. Now next we are going to talk about the other celestial body known as asteroid. So asteroid क्या है? It is a large rock in outer space. हमारे आउटर स्पेस में जो लार्ज रॉक है दैट इज नोन एज एस्टेरॉइड। कैसे होता है? स्मॉल इन साइज होते हैं बट इनके पास इनफ ग्रेविटी नहीं होती है। Asteroid belt is a region of space between the orbits of Mars and Jupiter, where most of the asteroids in our solar system are found orbiting the sun. Asteroid belt क्या है स्टूडेंट? Asteroid belt एक ऐसा रीजन है जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में होता है, एंड यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम के मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स जो है सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो एस्टेरॉइड बेल्ट को हम डिवाइड करते हैं एक इनर बेल्ट में और एक आउटर बेल्ट में। इनर बेल्ट जो है उसमें मेटलॉइक एस्टेरॉइड्स होते हैं जो मेटल के बने हैं, एंड आउटर बेल्ट जो है इट इज रिच इन एस्टेरॉइड्स होते हैं। देन वी हैव कॉमेट। कॉमेट एक रेयर एंड एक ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में जो कि डस्ट एंड आइस का बना होता है। देन वी हैव मेटेरॉइड्स। हैव यू एवर सीन अ शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार? सो समटाइम्स समथिंग, कभी कभी क्या, एक लिटिल बिगर देन अ पेबल विल पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड वी सी देम एज अ फायर बॉल। ठीक है, हमने कभी देखा हो थोड़ा सा एक पेबल से थोड़ा सा बड़ा सा साइज होता है, इस तरीके की ऑब्जेक्ट जो है आप देखते हो कि आपके एटमॉस्फेयर से पास हो रहा है। ठीक है, एंड वो हमें फायर बॉल की तरह दिखता है। ओकेजनली ओकेजनली द पीस ऑफ रॉक कैन बी बिग इनफ
कभी कभी वो जो पीस ऑफ रॉक है वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, सो दैट इट डज नॉट बर्न अप वाइन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। इतना बड़ा होता है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है एंड बर्न भी नहीं हो पाता, ठीक है। एंड उसके बाद वो हमारे ग्राउंड को हिट करता है। तो इन्हीं पीसेज ऑफ रॉक्स को क्या कहा जाता है? मेटेरॉइड्स कहा जाता है। यू कैन सी दीज आर एस्टेरॉइड्स, दिस इज कॉमेट एंड these are meteoroids. All right. Next, we have the stars. So when you look at the night sky, you see countless stars, right? And ये stars जो है काफी close to us, यानी कि काफी close दिखते हैं हमारे, but as a matter of fact, they are very far away from us and away from each other. हमसे बहुत 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 क्या दूर distance पे stars located होते हैं। ऑलराइट, स्टार क्या है स्टूडेंट? स्टार एक बहुत बड़ी सी बॉल है गैसेस की बनी हुई, जो कि अपनी खुद की लाइट एंड हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी पैटर्न्स ऑफ स्टार, ठीक है, काफी सारे डिफरेंट पैटर्न्स जो है हमें स्टार्स के विजिबल होते हैं इन द स्काई, एंड इन पैटर्न्स को व्हाट वी कॉल देम कॉन्स्टेलेशंस। द स्टार्स आर The stars we see in the night sky are only a part of huge star cloud. ये जो stars आप नाइट स्काई में देखते हो, ये एक बड़े से स्टार क्लाउड का पार्ट होता है, एंड इस क्लाउड को व्हाट वी कॉल इट मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऐसी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ऑलराइट, यू कैन सी दिस इज योर मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम एक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या है? द स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। छोटी छोटी सी ऐसी हेवनली बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, ठीक है। सो अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने खुद की सैटेलाइट्स होती हैं। एंड ये सैटेलाइट्स जो है स्टूडेंट्स नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ की केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज द मून, ठीक है। और मरकरी, वीनस ऐसे प्लैनेट्स हैं विच हैव नो सैटेलाइट्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू मून। मून क्या है? आवर क्लोजेस्ट नेबर। स्पेस में हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर कौन है अर्थ का? मून। इट सीम्स वेरी ब्राइट, काफी ब्राइट आपको दिखता है, बिकॉज ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। फ्रॉम डे टू डे मून जो है क्या अपनी शेप चेंज करता हुआ आपको अपीयर होता है। वाई? बिकॉज ये सन के अराउंड ट्रैवल करता है, एंड मून के डिफरेंट पार्ट्स जो है सन के थ्रू लाइट अप होते हैं। सो अनलाइक द अर्थ की तरह मून के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। दैट मीन्स मून डज नॉट हैव लाइफ ऑन इट। एंड एस्ट्रोनॉट फुटप्रिंट्स, ठीक है, मून के सरफेस पर जो एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स है वो वहाँ पे सेंचुरीज तक रहते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे विंड भी नहीं है जो उन फुटप्रिंट्स को डिस्टर्ब कर सके। सो दिस इज द फर्स्ट हेवनली बॉडी। सबसे पहली हेवनली बॉडी थी जिसको मैनकाइंड ने एक्सप्लोर किया था, दैट वाज मून। द सरफेस ऑफ द मून, तो मून के सरफेस पे क्या है? देयर आर सेवरल होल्स ऑन इट, ऑलराइट। उसके अलावा मून के सरफेस पे देयर आर हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स। व्हाट आर क्रेटर्स? क्रेटर्स आर द डीप होल्स, ठीक है, बहुत डीप होल्स है किसके? मून के ग्राउंड पे, जो कि किसकी वजह से बने हैं? बाय हिटिंग द हेवनली बॉडीज लाइक मेट्रॉइड्स ऑन द मून सरफेस, ठीक है। मेट्रॉइड्स जैसी हेवनली बॉडीज जब मून सरफेस को हिट करती हैं तो उसकी वजह से उसके सरफेस पे ये डीप होल्स बन के हैं, जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। ऑलराइट, एंड एज आई टोल्ड यू कि लाइट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून। मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज मून पे एयर एंड वाटर प्रेजेंट नहीं है, विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। मून इज वेरी हॉट, मून काफी हॉट है क्योंकि जब सन शाइन करता है क्योंकि इसके ऊपर, एंड ऑन द डार्कर साइड, दूसरी साइड पे मून काफी कोल्ड रहता है। Now, phases of the moon. So, moonlight, which we see from the earth at night, is not its own light. It is the light of the sun. And the sunlight reflects on the moon and shines on the earth. We call this light as moonlight. What does this say? कि जो moonlight आप अर्थ सरफेस पे खड़े होकर देखते हो नाइट टाइम पे इन द स्काई, वो एक्चुअल में मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ऑलराइट, जो सनलाइट फॉल करती है मून सरफेस पे, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड इसी लाइट को व्हाट वी कॉल मूनलाइट। सो हाफ ऑफ द मून सरफेस, सी व्हाट दे सेइंग कि मून सरफेस का हाफ पार्ट हमेशा सन को फेस करता है, एंड वो पार्ट जो सन को फेस करता है उस पे उस वक्त सनलाइट रिसीव हो रही है, ऑलराइट।
एंड द अदर हाफ, जो अदर हाफ पार्ट है वो सनलाइट को फेस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट विल नॉट रिसीव द लाइट एंड इट विल रिमेन डार्क, अंधेरा रहेगा उस साइड पर. समटाइम्स वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइटेड साइड, कभी कभी हमें लाइटेड साइड का भी सिर्फ कुछ पार्ट ही विजिबल होता है. ऑलराइट, एंड द अमाउंट ऑफ द लाइट साइड दैट वी सी चेंजेस एवरी नाइट. एंड आपको कितना सरफेस है, कितना मून का पार्ट लाइटेड दिख रहा है, इट चेंजेस एवरी डे. Alright? And the changing shapes of the moon that we see from the earth are called the phases of the moon. And यही changing shapes जो हमें moon की visible होती हैं on the earth's surface, they are called the different phases of the moon. Right? So moon के जो different phases है, that is the full moon, new moon, crescent moon and the gibbous moon. All these phases, ये सारे phases students again and again बार बार repeat होते रहते हैं. The moon never changes its shape. Moon actual में अपनी change कभी भी shape को change नहीं करता है, but it appears like it is changing. Alright? The changing shapes of the moon that we see from the earth are the shape of its lighted paths that is revolves around the earth. So basically जो changing shapes आपको moon की दिख रही है earth surface पे, वो उसके lighted part की shapes है, क्योंकि moon जो है sun के around revolve करता है and अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो जिसकी वजह से कुछ ही पार्ट है मून का जो लाइट को रिसीव करता है एंड देन it appears like the moon is changing its shape, but in actual it does not. All right, you can see these are the different phases of the moon which we commonly see from the earth's surface. Now next we have the topic gravity of the moon. And gravity of moon जो है 1/6 टाइम लेस है than the earth. फॉर एग्जाम्पल इफ अवर वेट, हमारा वेट अगर अर्थ पर कितना है 60 kg है, ऑलराइट, तो मून पे हमारा वेट केवल 10 kg होगा. व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू 60 इंटू 1/6, तो हाउ मच इट विल बिकम आउट 10 kg. ऑलराइट, चलो, सो देयरफॉर वन वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द मून. इसलिए मून पे वॉक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. अनलेस वन इज वेट डाउन दे विल फ्लोट. नेक्स्ट वी हैव टाइड्स. So you must have seen the tides in the sea. And do you know how it arises? It arises due to the moon. So due to gravity, the moon pulls water from the seas and ocean towards itself. This is called the tide. What they're saying is कि seas में जो हमें commonly tides देखने को मिलती हैं, that is due to the gravitational force which is exerted by the moon. Alright, so moon क्या करता है, जो sea and ocean में water होता है, उसे अपने towards pull करता है, ठीक है, and उसे कहा जाता है tide. How many types of tides are there? Two types of, that is high tide and the other is low tide. Every high tide, हर एक high tide के बाद एक low tide आती है, और जब water को moon अपने towards pull करता है, that is called high tide. And in the area between two high tides, दो high tides के बीच का जो area होता है, वहाँ पे water low tides form करता है. The highest tides occurs on full moon night. Full moon night पे सबसे ज़्यादा highest tides होती है, because उस टाइम पे सबसे ज़्यादा gravitational force जो है exert किया जाता है by the moon. Tides जो है ships के लिए useful है. When there is a high tide, जब high tides होती है, ships जो है easily कहाँ तक आ सकती है, port तक आ सकती है. And the knowledge of tide is also important. ठीक है, tides की जो knowledge है, जानकारी है, वो फिशरमैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जब वो फिशेस कैच करने के लिए जाते हैं इन द सी. एंड इन लो टाइड्स में जो है दे कैन नॉट ब्रिंग बैक देयर बोट्स टू द शोर. जब लो टाइड्स होती है तो जो आपके शिप्स मैन होते हैं वो अपनी बोट्स को शोर तक इजीली नहीं ला पाते हैं, बिकॉज सी वाटर जो है रिट्रीट्स फार अवे फ्रॉम द शोर. ऑलराइट, now next we have the topic eclipses. So eclipses take place due to the revolution of earth and moon. अर्थ एंड मून के रिवोल्यूशन की वजह से अब क्या होते हैं, एक्लिप्सेस फॉर्म होते हैं. ठीक है, द पोजीशन ऑफ मून एंड अर्थ, एज वी नो मून एंड अर्थ की पोजीशन जो है हमेशा चेंज होती रहती है. व्हाई? उनके रिवॉल्विंग मूवमेंट्स की वजह से. मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड अर्थ सन के अराउंड, सो उनकी पोजीशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है. ऑलराइट, सो एक्लिप्सेस टेक्स प्लेस. अब एक्लिप्सेस कब होते हैं, जब सन अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, देन द एक्लिप्सेस अपर. ठीक है, एंड ये आपके मोस्ट स्पेक्टेकुलर शेडोज है जो अर्थ एंड मून के थ्रू कास्ट करी जाती है बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट फॉलिंग ऑन ईच अदर.
So first of all, we have lunar eclipse. Basically, eclipse दो टाइप के हैं, solar और lunar. So we have first of all lunar, जो कब होता है? When the earth comes between the sun and moon. इस तरीके से सन एंड मून के बिटवीन में जब अर्थ आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स होता है, सॉरी ल्यूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। सो व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एंड ओकेजनली ये सन एंड मून के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो जो अर्थ की शेडो है वो मून पर बनती है एंड द पार्ट ऑफ द शेडो, शेडो का वो पार्ट जो पूरी तरीके से सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, दैट इज कॉल्ड उम्ब्रा, ठीक है। एंड जो अदर पार्ट है जो केवल सनलाइट के पार्शियल ब्लॉकिंग करता है उसको कहा जाता है न्यूम्ब्रा। ऑलराइट, ल्यूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल। अब ल्यूनर एक्लिप्स टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। सो जब मून कंप्लीटली अर्थ की डार्क शेडो में छिप जाता है उसे कहा जाता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। ऑलराइट, लेकिन जब मून पार्शियली यानी कि आधा ही छिपा होता है बाय द शेडो ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। ऑलराइट, देन वी हैव सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कब होगा? इट इज जस्ट रिवर्स, यानी कि जब मून अब सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा। पहले अर्थ आया था, अब मून सन और अर्थ के बीच में आता है, देन द सोलर एक्लिप्स अकर्स। वी नो मून क्या है? मून आपका ज्यादा नियरर है टू द अर्थ एज कंपेयर टू सन। सो व्हेन द मून, जब मून क्या अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो सम टाइम कभी कभी उस सन और अर्थ के बीच में आ जाता है एंड सन की जो रेज है वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती। ऑलराइट, सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो मून की शेडो है वो अर्थ पर कास्ट होती है और उस शेडो को कहा जाता है सोलर एक्लिप्स। अब सोलर एक्लिप्स भी दो टाइप का है, सोलर एंड पार्शियल, सॉरी टोटल और पार्शियल। तो सन जब कंप्लीटली छिप जाएगा मून की वजह से उसे कहोगे टोटल सोलर एक्लिप्स, लेकिन जब सन का कुछ पार्शियल पार्ट यानी कि आधा ही पार्ट हिडन होता है उसे कहा जाता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ऑलराइट, द eclipses should not be seen through naked eyes. Eclipses को हमें naked eyes के थ्रू नहीं देखना चाहिए, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें इन eclipses को देखने के लिए यूज करना चाहिए, बिकॉज इफ यू सी देम थ्रू योर naked eyes so they could damage your eyes. Alright, now let us recall the chapter. So the sun and the 8 planets, sun और जो 8 planets हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है एंड नियरली 145 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सन फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट्स क्या है? हेवनली बॉडीज हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। टोटल कितने? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, राइट। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। कॉमेट क्या है? कॉमेट आपका मोस्ट ब्रिलियंट और रेयर ऑब्जेक्ट, बहुत ही कम दिखने वाला ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई। सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स आपकी स्मॉल हेवनली बॉडीज है जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड द चेंजिंग शेप्स, जो मून की चेंजिंग शेप्स हम देखते हैं फ्रॉम द अर्थ, दे आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मूवमेंट। ऑलराइट, एंड द लास्ट eclipses. Eclipses take place due to the revolution of earth and moon around the sun. So that's all for the chapter which we have completed. These were the different types of heavenly bodies or the celestial objects that all together make up our solar system. I hope you must have understood the chapter. Now let's meet you very soon in the next session. Till then, keep going well and thanks to all.